ادارے کے ساتھ کوئی تقریباً 42 تک کی مسجدیں ہیں مختلف جگہوں میں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تقریباً 5 اس کی شاخیں ہیں باقاعدہ جس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان میں آپ کا ہوسٹ پیر بخش الوی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف مساجد مدارس آپ کو وزٹ کرواتے رہتے ہیں اور مختلف علماء سے ملاقات بھی ہوتی ہے، سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس علاقے میں گولڑا ریلوے اسٹیشن یہاں جامعہ دارالہدیٰ یہاں کے جو بانی و محتمم ہیں ان سے وقت حاصل کیا ہے کہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس جامعہ کے بارے میں تعارف کرواتے ہیں کہ یہاں اس جامعہ میں کتنے شعبہ جات ہیں اور کس کس طرح کی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے۔ تو ملتے ہیں علامہ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب اپنا آپ تعارف کروا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عبدالسلام اور میں نے تعلیم حاصل کی ہے کراچی میں۔ کراچی میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے بین الاقوامی، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، ویسے وہ مشہور ہے بنوری ٹاؤن کے نام سے۔ تو میں نے کوئی تقریباً 14 سال وہاں حفظ اور تجوید، اس کے بعد درس نظامی اور مفتی کا کورس وہاں سے کیا ہے، اور میٹرک کا امتحان بھی میں نے کراچی ہی سے دیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ جو جامعہ آپ نے بنایا، یہ کس سن میں اس کی ابتدا کی گئی، کب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا؟ میں نے کراچی میں، جیسے میں نے بتایا، میں نے وہاں پڑھا ہے، اور وہاں سے پھر میں آیا ہوں اسلام آباد میں 1994 میں۔ 1994 کے بعد پھر یہاں میں نے اپنا جو میں نے پڑھا تھا اس حوالے سے، چونکہ اس کا تعلق مدرسہ مسجد سے ہے، تو پھر 94 کے آخر میں علی مسجد کے نام سے F11 میں ایک مسجد بنائی گئی، اور وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے، تو 2001 میں ہم نے یہاں کرائے کے کچے 3 کمروں میں اس ادارے کا آغاز کیا تھا۔ اسی جگہ پر کرائے کے کچے 3 کمرے؟ یہاں نہیں، ساتھ ہی بالکل، یہاں ساتھ قریب میں ہے، اس میں کرائے کے 3 کمروں میں ایک ادارے کا آغاز کیا تھا۔ صحیح۔ اور اس ادارے کا نام اسی وقت اس کو جامعہ دارالہدیٰ کا نام دے دیا گیا تھا؟ ہاں بالکل، اس وقت سے اس کا نام جامعہ دارالہدیٰ ہی، اور اس کے اندر جو کچھ اب آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس وقت یہ ایک خیال تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو وجود دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے شعبہ جات کتنے ہیں اس وقت یہاں پر؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ کرائے کے 3 کمروں سے آپ نے شروع کیا، اور ماشاءاللہ آج ایک بہت بڑا ادارہ یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس وقت جامعہ دارالہدیٰ کے کتنے شعبہ جات ہیں اور کس کس طرح کی تعلیم یہاں پر دی جائے؟ جیسے میں نے بتلایا کہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا 2001 میں کرائے کے مکان سے، اور پھر اس کے بعد یہ زمین خریدی گئی، تو پچھلے تقریباً اس 21-22 سالوں میں ہم نے تعمیر اور تعلیم، بلکہ تعمیر، تعلیم و تربیت جو ہے اس کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت جامعہ دارالہدیٰ میں مختلف شعبے کام کر رہے ہیں۔ ایک شعبہ اس کا عصری علوم کا ہے، اس میں ہم بچوں کو نرسری سے لے کر میٹرک تک کی تعلیم دیتے ہیں سائنس گروپ میں، اور یہ الحمدللہ یہ ریگولر سکول ہے، باقاعدہ فیڈرل بورڈ سے منظور شدہ سکول ہے۔ تو کیا اس کی کوئی علامہ صاحب فیس ہوتی ہے یا اس میں فری ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل فری جو طلباء ہے ان کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اس میں نرسری کی کلاس میں اور مڈل تک تو یہاں مقامی بچے ہیں، اور اس کے بعد پھر باہر کے بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جن کو ہم یہاں کے بھی ہیں، باہر کے بھی ہیں، ان کو ہم میٹرک کرواتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں علامہ صاحب جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کو کیا مخصوص طبقے کے ہوتے ہیں، یا کسی بھی طبقے سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو وہ یہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کوئی بھی آ جائے ہم اس کو داخلہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی خاص طبقے کے لیے بنایا ہو، اور یہ علاقہ بھی ملا جلا ہے، اس لیے ہمارے پاس سارے ہی بچے آتے ہیں اور سب اس میں پڑھتے ہیں۔ زبردست۔ مطلب اس کے علاوہ آپ کے کوئی شعبہ جات کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے، کمپیوٹر کورسز کے حوالے سے؟ بتا رہا تھا، دوسرا شعبہ اس میں لینگویج کا شعبہ ہے۔ اس میں بچوں کو انگریزی، عربی، اردو تو ہماری قومی زبان ہے، لیکن جو اور عربی ہماری قرآن کی زبان ہے، اور انگریزی ہماری ضرورت کی زبان ہے، تو ہم یہ تینوں زبانیں جو ہے یہ بچوں کو سکھاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بچے اس میں مہارت بھی حاصل کریں۔ یہ دوسرا شعبہ ہے۔
तीसरा शोबा हमारा दर्स निज़ामी का है। दर्स निज़ामी का मतलब ये कि वो 9 साला एक निसाब है जो पढ़ कर के एक बच्चा आलिम बनता है। और चौथा शोबा फिर जो है वो हमारे यहाँ तखस्सुस का है, यानी वो बच्चे जो दर्स निज़ामी पढ़ करके मैट्रिक करके फिर वो PhD करते हैं फ़िक़्ह में, जिसको हमारे यहाँ मदारिस की इस्तिलाह में तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह कहते हैं। वो फ़िक़्ह के अंदर और मालूमात जो दीनी मसाइल हैं उसके हल में महारत हासिल करते हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन होती है उसमें। स्पेशलाइजेशन इसमें होती है। और पांचवा शोबा जो है हमारा तहफ़ीज़ का है, जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, हिफ्ज़ के साथ हम उनको नर्सरी और मिडल तक जो है ना स्कूल भी पढ़ाते हैं। और सातवां शोबा हमारा है शोबा सेहत। उसमें बाकायदा अगर आप नीचे तशरीफ़ ले जाएंगे तो इसमें 7 अफराद पर मुश्तमिल हमारा एक मेडिकल सेंटर है। उसमें तलबा और यहाँ के इलाके के सारे लोगों के लिए फ़्री सारी सहूलतें उनको दी जाती है। इसमें लेडी डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी है, और उसके अलावा 5 अफराद पर मुश्तमिल अमला है, और दवाइयाँ भी मिलती है। एक छोटी सी लेबार्ट्री भी है, उसमें ज़रूरत के तकरीबन सारे टेस्ट उसमें हो जाते हैं। ज़बरदस्त। तो इसमें अलामा साहब, ये जो आपके पास तालिब इल्म दाखिला लेते हैं, इसमें कोई उम्र की कैद भी होती है? यानी कि दर्स निज़ामी भी आप करवा रहे हैं, हिफ्ज़ भी करवा रहे हैं, क्या छोटी उम्र के लोगों को इसमें दाखिला मिलता है, या कोई बड़ी उम्र का बंदा, मतलब बचपन में कोई नहीं पढ़ सकता है ना, घरेलू हालात की वजह से कोई और मसाइल होते हैं, कोई मामलात, तो अगर कोई बड़ी उम्र का कोई दाखिला लेना चाहे तो उसके लिए कोई अलग से यहाँ पे शुबा होता है कि उसको दाखिला दिया जाए या नहीं होता है इसके? असल में यहाँ तो उम्र की क़ैद है, हिफ्ज़ के लिए भी है, स्कूल के लिए भी है, दर्स निज़ामी के लिए भी है। उसकी वजह यह है कि ये एक मुकम्मल जो है तालीम का हिस्सा है, तो तालीम उम्र के साथ मशरूत है। लेकिन तालीमी बालिग़ा के लिए जो हमारे इस इदारे के साथ मुल्हक़ा मसाजिद है, यहाँ पर भी बड़े हज़रात के लिए बाकायदा जो है इंतज़ाम मौजूद है, उनको कुरान और सुन्नत की तालीमात दी जाती है। अलबत्ता अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी भी दर्स निज़ामी पढ़ना चाहे, तखस्सुस करना चाहे, तो उसके लिए रुकावट नहीं है, वो पढ़ सकता है। हमारे यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे दर्स निज़ामी की दूसरी क्लास है, दर्जे सानिया उसको कहते हैं। उसमें गालिबन एक हमारा तालिब इल्म है जिसकी उम्र होगी, रिटायर्ड हो चुके हैं वो, और रिटायरमेंट के बाद ज़ाहिर है कि 60 साल से ऊपर उसकी उम्र होगी, 65 साल से ऊपर होगी। वो उन बच्चों के साथ बैठ करके इस वक्त दर्स निज़ामी पढ़ रहा है। तो क़ैद नहीं है, अगर कोई आके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन अमूमन तलबा जब आते हैं तो उनके लिए उम्र का लिहाज रखा जाता है। ज़बरदस्त। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाता है, मिसाल तौर पर अब जो हिफ्ज़ के होते हैं, तो उसमें क्या कोई होती है कि प्राइमरी का ही स्टूडेंट आएगा जिसने प्राइमरी पास की हो तो उसको हिफ्ज़ की क्लास में भी बिठाया जाएगा, या कि बिल्कुल अनपढ़ कोई स्टूडेंट आता है तो उसको भी बिठा लिया जाता है? उसमें क्या होता है, तालीम की क्या कैद होती है? हम जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उस बच्चे का इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तालीमी शरह जो है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म तक ख़राब है। तो हम उस बच्चे का इम्तिहान लेते हैं और फिर उस बच्चे को देख करके उसका फ़ैसला करते हैं कि हम उस बच्चे को क्या पढ़ा सकते हैं, और अगर हमारे पास वो नहीं पढ़ सकता तो फिर हम उसके वालिदैन को मशवरा भी देते हैं कि वो आगे क्या कर सकते हैं इस बच्चे का। ज़बरदस्त। यानी कि अगर कोई दर्स निज़ामी के लिए आता है तो उसके लिए फिर उसका भी इम्तिहान होगा, या उसके लिए होगा कि अगर वो मिडल की सनद है, और वो इसके लिए क्या होगा, दर्स निज़ामी के दाखिले के लिए क्या शराइत होती है? हर शोबे में इम्तिहान लिया जाता है, उसकी सलाहियतें चेक की जाती है, और उसकी सलाहियतों को देखा जाता है, फिर दाखिला मिलता है। सही, मतलब उसकी तालीम अगर मिडल है तो उसका इम्तिहान वो पास करता है तो वो दाखिला ले सकता है, या कि मिडल ना भी हो और सिर्फ इम्तिहान पास करके आ जाए? नहीं, अब वो जैसे कि ना बात यह है कि अगर वो मैट्रिक के लिए मिडल से आगे पढ़ना चाहता है तो उसका हम इम्तिहान मिडल का लेंगे। हम सिर्फ उसकी सनद नहीं देखते कि एक बच्चा जो है स्कूल से सनद लेके आ जाए कि जी मैंने ये पढ़ा, नहीं, वो हमारे इस इदारे के इम्तिहान को पास करेगा तो हम उसको दाखिला देंगे। ज़बरदस्त। यानी कि उम्र की कैद नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे, यानी कि शराइत तो हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको यहाँ पर दाखिला मिल सकता है। और इसके अलावा क्या कोई मसलक की कैद है कि फ़लाँ मसलक का ही पढ़ सकता है, दूसरे किसी मसलक का नहीं पढ़ सकता? नहीं, हम मसलक की कोई कैद नहीं लगाते। हमारे पास जो आए पढ़ना चाहे तो हम उसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। यानी कि हमारे इस जामिया दारुल हुदा के अंदर मसलक की कोई कैद नहीं है, चाहे किसी भी मसलक का हो उसको दाखिला मिल सकता है, हम उसको दाखिला दे देते हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत खुशाइन बात है। अल्लामा साहब, ये बताएंगे आप, क्या एक बहुत बड़ा इदारा आज एक ये प्रोग्राम हमने देखा, तो कितने उलमा आज यहाँ से जो है ना फारिग तहसील हुए? यहाँ से तकरीबन 34 उलमा, 51 हुफ़ाज़, और जो मैट्रिक में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ शोबे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आज ये प्रोग्राम जो था
हुफ़ाज़ का था और उलमा का था, और 7 मुफ्ती हज़रात थे जो यहाँ से फ़ारिग हुए हैं। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह एक बहुत बड़े लेवल का आप ये काम कर रहे हैं, तो इतने बड़े लेवल में क्या कोई हुकूमती कंट्रीब्यूशन भी है, या आप तने तनहा, या किस तरह से कर रहे हैं? ये कैसे आपका ये काम निज़ाम, हुकूमत की तरफ से कोई हेल्प आउट होता है इस निज़ाम में? असल में बदकिस्मती से जो हमारी हुकूमतें हैं, वो बजाय इसके कि वो इस किस्म के कामों की हौसला अफजाई करें, तो हुकूमतें तो हौसला शिकनियाँ करती है, और बाहर के जो इदारे हैं, बाहर की हुकूमतें हैं, वो उनके दबाव में आकर के इन इदारों के लिए मुश्किलात खड़ी करती है। दूसरी बात जो आपने कही, तने तनहा दीन जो है ये एक इज्तिमाई दीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में दीनी इदारों के ऊपर माहाना खर्च अरबों में है, करोड़ों में नहीं है, अरबों में। अगर पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े मदारिस के अखराजात को जमा किया जाए तो माहाना अरबों में है, और ये अरबों रुपए का ख़र्चा पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर रही है। माशाल्लाह। सबसे पहले अल्लाह का फजल है, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी कौम है। और ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कहते हैं कि यार मेरा नाम, डरने की वजह से नहीं, कहते मेरा नाम ले लेना, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कहीं मेरी रियाकारी का सबब ना बन जाए और कबूल ना फरमाए, यानी कि ऐसा ना हो जाए कि ये दिखावे में ना आ जाए। दिखावे में ना। बहुत ज़बरदस्त। तो इसके अलावा आप ये बताएंगे कि इस जामिया के आपके और भी कोई शाखें हैं, या सिर्फ ये एक ही जामिया? इस इदारे के साथ कोई तकरीबन 42 तक की मस्जिदें हैं मुख्तलिफ़ जगहों में, और उसके साथ ये है कि तकरीबन 5 इसकी शाखें हैं बाकायदा जिसमें तालीम दी जाती है। माशाल्लाह। ये 42 मसाजिद ये इसी इस्लामाबाद के अंदर है? ये 5 तो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद के बाहर तो फिर ज़्यादा है, वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में है। यानी कि इस जामिया के साथ जुड़ी हुई पूरे मुल्क के अंदर 42 शाखें हैं? नहीं, ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। 42 जो हैं जी, और इस तरह जो है ये तकरीबन कोई 5 शाखें हैं जी। बाकी जो पूरे मुल्क में हम काम करते हैं। मैंने पहले एक जुमला कहा कि एक रिफाई इदारा भी है। 2005 के ज़लज़ले में, 2010 के सैलाब में, और फिर 2015 या उसमें बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया था उसमें, फिर सिंध के अंदर खाससारी आई थी बच्चों की जो वबा का थर में, उसमें, और अभी जो सैलाब आया है मौजूदा, जो बहुत बड़ी चैलेंज थी पाकिस्तानी कौम के लिए। इन सारे मौक़े पर इस इदारे के ज़रिए से हमारे पाकिस्तानियों की तकरीबन करोड़ों रुपए की यहाँ से इमदाद हुई है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो इसके अलावा आप कोई उम्मत मुस्लिमा के लिए और हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो वो आप बताएं। पैगाम ये है कि मुख्तलिफ़ शोबे हैं हम सब के लिए, और ये जो मदारिस मसाजिद का शोबा है ये सारे मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का शोबा है। ये नेक काम भी है, ज़िम्मेदारी भी है। तो मेरी दरख्वास्त है सारे मुसलमानों से, वो प्रोपेगंडा में ना आए, वो इन इदारों के अंदर आकर के देखे कि इन इदारों में हो क्या रहा है। यहाँ अगर इस्लाहात की कोई बात हो तो ज़रूर करें, लेकिन अगर इन इदारों में कोई आता नहीं और बाहर के प्रोपेगंडे से मुतासिर होकर के अलग तलग होकर के बैठ जाता है, तो इससे उम्मत का भी नुकसान है, कौम का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, हमारे ईमान का भी नुकसान है। बेशक। इसी तरह मैं एक बात अर्ज़ करूँ, ये इदारे सब के लिए खुले इदारे हैं, यहाँ कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती।